Good evening, Jai Guruji, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to everyone. Am I audible and visible to everyone? If yes, please send the message in the chat box. Yes, ma'am, you are audible. Thank you, Pooja ji. And if I can ask people to please turn their cameras on, that will be great. जितने भी लोग क्लास में हैं, if it is possible to please turn your cameras on. पूजा जी, सुस्मिता मैम आएंगी, ज्वाइन करेंगी कैसे, आप बताएंगे एक बार. Yes, ma'am, ma'am connect हो रहे हैं. और I'll just give her once again one reminder. ठीक है. So, Parna ma'am, am I audible to you? You're audible, ma'am. Ma'am, actually, many people are facing little issue in joining the meeting. So, we Okay. have to wait for 2-3 minutes more so that we can Sure. start. So Because I what think exactly problem that they are facing while logging in? actually there is an issue. They are not able to log in with the help of their link Uh-huh. provided, but I think they can log in with the help of meeting ID. So we have to actually tell them about this, that they have to use the ID rather than the link if it is not working. Okay, fine. Yeah, so they will take little time. Just we will try to solve this as soon as possible. Sure. If in case you want any help, so my team is already there, so they can also help you out in this. Sure, ma'am. Sure, sure. All right. Thank you so Thank you. much. Welcome. Welcome. Here we go. Yes, ma'am. Yes, sir. Good evening, everyone. It is my pleasure to warmly welcome all the dignitaries, faculty members, guests, and the participants to today's interdisciplinary webinar bringing together diverse perspectives from mathematics to mischievous. To begin the program, I invite Mr. Ashwin Kataria to share a few words about our esteemed college. Thank you, sir. Over to you. Good afternoon, everyone. Am I audible clearly? Yes, sir. Am I audible? Okay. Yes. Okay. So, Ridhambara Vishwa Vidyapith started in 1994. The important milestone of higher education in the name of Ridhambara Vishwa Vidyapith, Malani Kishore Sanghvi Junior and Degree College, with an initial enrollment of 37 students. Today, this institution has grown horizontally and vertically, having an enrolled strength of around 5,000 students. This institution offers all the commerce faculty graduate programs like BCom, BMS, BAF, BFM, BIM. Also, one arts stream program we have in the name of BA MMC, and one science stream program we have in the name of BSc IT. College also runs PG, post graduation in MCom in management group. The results are excellent and students scramble for admission here. It is also a very vibrant place involved in innumerable culture, sports, and other extracurricular activities all year around. Right now, the institution is headed by Dr. Sushmita Dakshini ma'am, and under her guidance, we are sure that this session, along with the institution, will flourish. Thank you very much for giving me this opportunity, ma'am.
Thank you so much, sir. Now I would like to call our principal, ma'am, to brief about this session and our guests. Thank you, ma'am. Over to you. Thank you, Ms. Pooja. Good afternoon, all. With great honor, I warmly welcome our distinguished guest speaker, Ms. Suparna Arora. Madam, our respected teachers, students, representing various colleges of Mumbai, and all esteemed participants present today. It's my privilege to greet you all to this special webinar from mathematics to mysticism. When we think of mathematics, we often picture logic, formulas, and precision. Numbers are far more than arithmetic. They carry symbolism and even mystery. Have you ever wondered why number 13? So much so that many hotels and elevators around the world skip this number. Or why is it that certain numbers are lucky while others are avoided? Well, clearly these numbers are not just about the calculations. So across cultures and religion, numbers hold sacred meaning. 108 beats in prayer or 12 zodiac signs guiding the stars. In numerology, numbers become more deeply personal, interpreting a birth date's name and life path. They influence our choices, our belief, and even the way we see ourselves. This afternoon, we embark upon the fascinating journey where fact meets faith and logic meets imagination. Today, we will explore how numbers shape our rational thought and mystical wonder. By the end of this session, I'm certain that you will never look the number 13 or any other number the same way as we have been doing it. You will be inspired to discover how numbers continue to guide the way we think, live, and believe. Today, I'm delighted welcoming Suparna Arora ma'am, who will be guiding us on an enlightening journey to the world of numbers. Madam is a renowned cosmic expert and life path mentor, dedicated to guiding individuals towards clarity, empowerment, and self-discovery. She is a founder of Mystic Guidance and has spent years decoding the hidden meaning of numbers and cosmic energies, helping people align with their true life path. Her journey began with a deep curiosity about astrology and numerology, which blossomed into the professionalism calling. Through consultation, workshops, she has simplified complex spiritual sciences, making it accessible throughout the world. She has trained over 1 lakh students in numerology and spiritual science, and more than 7,000 individuals have personally consulted her for guidance. But this number is growing day by day, ever sparkling and full of cheer. Madam brings a warm and intuitive approach, seamlessly blending ancient wisdom with modern insights, offering practical remedies, energy alignment, and manifestation practices. So our mission is to help people harness the power of numbers and universal energies to create abundance, balance, and purpose in their lives. So I invite all of you to open up your minds and heads to this enriching experience. Over to ma'am Suparna. Thank you. Thank you so much, ma'am, for the wonderful welcome. And I wish that whatever purpose that you all are sitting here, I'll be gonna help you out for that particular purpose. न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे, नंबर्स के बारे में बात करेंगे, व्हाई नंबर्स आर लाइक वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ. सो माय नेम इज सुपर्णा अरोड़ा. मेरी जर्नी के बारे में ऑलरेडी मैम ने आपको बता दिया है, और काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में हम स्लोली एंड ग्रेजुअली जानेंगे, जहाँ पे हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं इन नंबर्स के बारे में जानकर. नंबर सिर्फ 9 ही हैं, उन्हीं 9 नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्लाइड दिखाना चाहूंगी. इफ यू आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर स्लाइड, काइंडली गिव मी थम्स अप और हेड्स अप इन द चैट बॉक्स, so where we can go ahead and start with the little informations and little things. So are you all able to see the PPT or the slide on your screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right.
I really want if other participants can participate in the chat box, that will be great. और जितने लोग अगर कैमरे को ऑन करके बैठ सकते हैं, बिकॉज हम एक ऐसी मोडालिटी को सीखने के लिए आए हैं या एक ऐसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आए हैं जहाँ पे एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. So if you can all turn your cameras on and if you can just help me out to answer the queries in the chat box. Thank you so much. मेरा इंट्रोडक्शन पहले ही आप लोगों को मिल चुका है. So आज जो है हम जानेंगे कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में, हिंदू प्रैक्टिसेस में कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में. न्यूमरोलॉजी क्या है, करियर में हम न्यूमरोलॉजी या नंबर्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी के पीछे की वाइब्रेशंस क्या है, क्यों आजकल सारे सेलिब्रिटीज नेम स्पेलिंग करेक्शन कराकर अपनी लाइफ को और बेहतर कर रहे हैं या अपनी लाइफ में एक सक्सेस और अपनी लाइफ को और इनहांस कर रहे हैं. सो वी विल स्टार्ट विद लिटिल मिथ्स एंड फैक्ट्स. थोड़े थोड़े से फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में हम बात करते हैं और उनसे जो है हम चीजों को शुरू करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम सभी को पता है कि हम लोग एकादशी पे चावल नहीं खाते हैं. वी डोंट ईट राइस ऑन एकादशी. बट इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे दो रीजंस है, स्पिरिचुअल एंड आयुर्वेदिक. साइंटिफिक दोनों रीजंस होते हैं. स्पिरिचुअल रीजन हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग जो है, स्क्रिप्चर्स में बेसिकली एकादशी जो है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट की जाती है और ये दिन होता है बॉडी और माइंड की प्योरिफिकेशन के लिए. माना जाता है कि पापा पुरुष, जिसको हम सिंस नेगेटिव कर्मा का सिंबल बोलते हैं, एकादशी वाले दिन ये चावलों के दानों में, राइस ग्रेन्स के अंदर जाकर जो है ये छुप जाते हैं. इसीलिए अगर इस दिन चावल खाए जाते हैं, राइस खाए जाते हैं, और क्योंकि लोग इस दिन फास्ट भी रखते हैं और प्रेयर्स और स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव रखते हैं, तो उनको वो राइस खाने से उनके सारे के सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स नहीं मिलते उनको. इसी वजह से डिवोटीज राइस को खाने के लिए अवॉइड किया जाता है. इसीलिए आप लोगों को फलहार जो कि फ्रूट्स, साबूदाना, कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा खाने के लिए बोला जाता है. अब इसके पीछे का आयुर्वेदिक साइंटिफिक रीजन क्या है जिसके बारे में बात करते हैं. आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल और लॉजिक देता है. ठीक है. एकादशी महीने में 2 बार आती है. मून जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांगली जो है वो अफेक्ट करता है. राइस खाना में डाइजेशन सिस्टम में थोड़ा सा पचाने में मुश्किल होता है, डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है, जिससे म्यूकस फॉर्म होता है और लूनर डे पे डाइजेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो राइस खाने से हो सकता है एसिडिटी हो, गैस्ट्रिक हो, थोड़ा सा लेथार्जिकनेस लगे या आपको ब्लोटिंग फील हो. इसीलिए राइस को अवॉइड करना, बॉडी को डिटॉक्स करना, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है, मेंटल क्लियरिटी बढ़ती है और एनर्जीज जो है वो बैलेंस होती है. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, स्पिरिचुअली एकादशी पर राइस खाने से नेगेटिव वाइब्रेशंस को आप अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे हो, और फिजिकली एकादशी पर राइस खाने से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप और हैवी कर रहे हो. बेसिकली अगर मैं ये दो चीजों के बारे में बात करूं, इसीलिए कहा जाता है एकादशी को राइस नहीं खाना चाहिए. Now, the next and the major myth and the major fact about कि थर्सडे वाले दिन हम लोग हेड वॉश क्यों नहीं करते हैं, या हम लोग जो है वो अपने कपड़ों को वॉश क्यों नहीं करते हैं. Why we don't wash our head or clothes on Thursday? इसके पीछे भी 2 रीजंस हैं, स्पिरिचुअली, प्लानिटरी और आयुर्वेदिक रीजन भी है. 3 रीजंस हैं. थर्सडे को हेड वॉश क्यों नहीं करते हैं? थर्सडे गुरुवार, मतलब जो रूलिंग प्लैनेट है इसका वो है जुपिटर, और जुपिटर क्या रिप्रेजेंट्स करता है? विजडम, प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज एंड ब्लेसिंग्स. स्पिरिचुअल बिलीफ के अकॉर्डिंग थर्सडे को हेड वॉश करना मींस गुरु की ब्लेसिंग को वॉश आउट कर देना. मैं अपनी क्लास में इसका बहुत एग्जांपल देती हूँ एंड आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर. अगर हमारे हाथ गंदे हैं और उसको अगर हम नॉर्मली पानी से वॉश करेंगे तो शायद वो क्लीन ना हो, लेकिन अगर मेरे हाथ जर्म से भरे हुए हैं, गंदे हैं, तो मैं उनको अगर साबुन से वॉश करूंगी तो मैं क्या करती हूँ, सब चीजों को वॉश आउट, गंदगी को वॉश आउट कर देती हूँ. ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ में थर्सडे वाले दिन हेड वॉश करते हैं, क्लोथ्स वॉश करते हैं या सोप को इस्तेमाल करते हैं, सो इन शॉर्ट यू विल बी गोना वॉश आउट ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बिकॉज थर्सडे जो है वो डिवाइन एनर्जीज का डे होता है. मनी को वॉश आउट कर देता है, स्टेबिलिटी को, ग्रोथ को. इसीलिए माना जाता है कि हेड वॉश से पॉजिटिव गुरु एनर्जीज जो है वो कम हो जाती हैं. ट्रेडिशनली थर्सडे को रखा गया है पूजा का दिन, सत्संग का दिन, गुरु के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करने का दिन रखा गया है. येलो पहनने से, चना दाल क्या कहते हैं डोनेट करने से, हल्दी डोनेट करने से हम अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करते हैं. इसीलिए लोग हेड वॉश को अवॉइड करते हैं ताकि गुरु की एनर्जी हमारे ऊपर है.
थर्सडे को कपड़े क्यों नहीं धोए जाते हैं? अब पौराणिक वैदिक बिलीव ये है कि थर्सडे जो होता है वो लक्ष्मी और गुरु का दिन होता है, वेल्थ एंड विजडम का डे होता है। कपड़े धोना मतलब घर की प्रोस्पेरिटी को बाहर निकाल देना। प्रैक्टिकली आयुर्वेदा लॉजिक भी है इसके पीछे। थर्सडे की एनर्जी थोड़ी हैवी एनर्जीज होती हैं, ग्राउंडिंग एनर्जीज हैवी और ग्राउंडिंग एनर्जीज होती हैं। ज्यादा फिजिकली काम किया जाए इस दिन, तो हम इस दिन अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए ये दिन को प्रेयर्स में, टीचिंग्स में, एजुकेशन में, नॉलेज विजडम की तरफ अगर लगाया जाए तो ये दिन हमारे लिए अच्छा माना जाता है। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, नो हेड वॉश मीन्स गुरु एनर्जी आप प्रोटेक्ट करते हो, नो क्लोथ्स वॉश मीन्स आप अपनी लक्ष्मी की एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो। सिंपल। नेक्स्ट जो हमें जानना बहुत जरूरी है, लॉट ऑफ पीपल ईट नॉनवेज। हम इस पे कोई डिबेट नहीं कर सकते कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज बैड। लेकिन ट्यूसडे को नॉनवेज क्यों नहीं खाया जाता, हम इस पे बात करते हैं। इसके पीछे स्पिरिचुअल, प्लैनेटरी और आयुर्वेदिक तीनों रीजन है। स्पिरिचुअल रीजन, हनुमान जी का दिन है, मंगल का दिन है, मार्स की एनर्जी है, तो ट्यूसडे मंगलवार को डेडिकेट किया गया है। हनुमान जी को, लॉर्ड कार्तिकेय को और प्लैनेट मार्स को, इन तीनों को ये डेडिकेट किया गया। ये एनर्जी रिप्रेजेंट्स करती है स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, करेज और गुस्सा और डिजायर पर कंट्रोल करना। नॉनवेज एक तामसिक फूड है जिसको खाने से माना जाता है कि बॉडी में और ज्यादा अग्रेशन क्रिएट होता है, रेस्टलेसनेस बढ़ाता है, गुस्सा ज्यादा आता है और उस दिन की स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए डिवोटीज ट्यूसडेज को नॉनवेज नहीं खाने के लिए बोलते हैं और हनुमान जी को ऑनर करने के लिए बोलते हैं, जिससे हमारा माइंड जो है वो काम रहता है। इवन जिनको हाई बीपीज होता है, डॉक्टर्स उनको भी नॉनवेज खाने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बिकॉज नॉनवेज में एक तामसिक एनर्जी, तामसिक फूड माना जाता है जिसको खाने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। प्लैनेटरी रीजंस, मार्स के अफेक्ट। मार्स गवर्न करता है ब्लड, मसल्स, बॉडी हीट। नॉनवेज ऑलरेडी बॉडी में हीट और एसिडिटी जो है वो बढ़ा रहा है। ट्यूसडे मार्स का जो दिन है तो ये डबल फायर क्रिएट करता है, जिससे गुस्सा, बीपी फ्लक्चुएशंस, स्किन प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। तो इसीलिए ट्यूसडेज को नॉनवेज खाना अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। एंड इसके पीछे अब आयुर्वेदिक रीजन क्या है? आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग नॉनवेज होता है राजसिक और तामसिक, हैवी स्टिमुलेटिंग एनर्जी वाला फूड। ट्यूसडे नेचुरली हाई फायर एलिमेंट का दिन होता है। हाई प्रोटीन लेने से गैस्ट्रिक एसिडिटी और लथार्जिकनेस आती है। तो हो सकता है लाइट या सात्विक फूड आपको इस दिन हेल्प करे, डाइजेशन बेटर करे, इमोशनल स्टेबिलिटी दे और एनर्जी को बैलेंस करे। इन शॉर्ट, स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे हनुमान जी और मार्स का जो है वो रिस्पेक्ट के लिए हम जो है वो नहीं खाते हैं। प्लैनेटरी पोजीशंस के लिए, एक्सेस फायर कंट्रोल के लिए और आयुर्वेदिक में डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल या न्यूट्रलाइज रखने के लिए। ये इसके पीछे के रीजंस है। नाउ, नेल कटिंग्स एट नाइट, व्हाई वी हैव टू अवॉइड। रात को नाखून काटना, नेल काटने को हम क्यों अवॉइड करने के लिए बोलते हैं? इसके पीछे भी प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल और आयुर्वेदिक रीजंस तीनों हैं। प्रैक्टिकल और साइंटिफिक रीजन, पुराने जमाने के लोग, पहले टाइम के लोग बोलते थे बिजली नहीं होती थी, ठीक है, लाइट नहीं होती थी, प्रॉपर नेल कटर्स नहीं होते थे, लोग ब्लेड्स को, नाइफ्स को यूज करते थे नेल कट करने के लिए। इसीलिए नेल्स को काटना इट वाज नॉट वेरी इजी। उंगली कट सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड निकल सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए बड़े लोगों ने रूल बना दिया, धीरे धीरे ट्रेडिशन बन गया कि रात को नाखून नहीं काटने। स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम क्या है? वास्तु और एनर्जी साइंस के अकॉर्डिंग नेल्स बॉडी की एक एक्सटेंशन एनर्जी होते हैं, बढ़ते हैं ना, जब काटोगे तो बढ़ते हैं। तो नेल्स बॉडी की एक एक्सटेंशन एनर्जी होते हैं। रात को जब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, नेल कटिंग करने से, नेल जब आप कट करते हैं तो आपकी पर्सनल वाइब्रेशंस लो हो सकती हैं, नेगेटिव एनर्जी को आप ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। रात को टाइम होता है रेस्ट का, हीलिंग का, ग्रूमिंग का नहीं। दैट इज द रीजन। एंड अनदर मेजर रीजन इज, जो हमारा नेल होता है ना वो होता है डीएनए का पार्ट, ठीक है। और डीएनए, अगर हम नेल्स को रात को कट करते हैं और रात को कुछ नहीं दिख रहा, तो हो सकता है नेल्स किसी से अंधेरे में गिर जाए। बिकॉज नेल्स हमने जब भी देखा है हम कट करके, या हमने अपने बड़े बुजुर्गों सुना, उसको हमेशा ट्रैश किया जाता है, या तो फ्लश आउट किया जाता है या ट्रैश में डाला जाता है। क्योंकि अगर नेल्स और हमारे बाल पैरों के नीचे आते हैं तो हमारी लाइफ में दरिद्रता आती है, बेसिकली बिकॉज ये हमारा एक डीएनए का पार्ट है। नाउ इसके पीछे का आयुर्वेदिक रीजन क्या है? आयुर्वेदा कहता है सनसेट के बाद बॉडी अंदर की तरफ शिफ्ट होती है,
डाइजेशन और हीलिंग मोड स्टार्ट हो जाता है। कोई भी कटिंग एक्टिविटी इस नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है, इसीलिए नेल कट करना या ग्रूमिंग दिन में करो तो वो बेस्ट है। सो इन शॉर्ट, दिन में क्लेंजिंग एंड एक्टिविटी, रात में हीलिंग एंड रेस्ट, इसीलिए कहते हैं रात को नेल्स कट नहीं करने। एंड द नेक्स्ट फैक्ट एंड मिथ जो हमें जानना बहुत जरूरी है, 108 बीड्स होते हैं जब हम कोई भी मनके की माला को चांट करते हैं। क्यों 108 मनके होते हैं एक माला में? 108 कोई रैंडम नंबर नहीं है, इसके पीछे स्पिरिचुअल साइंसेस है, न्यूमरोलॉजी है और यूनिवर्स कनेक्शंस है इसके पीछे। नंबर वन कॉस्मिक रीजन क्या है, यूनिवर्स कनेक्शंस क्या है? एशियंट टाइम पर जो डिस्कवर किया गया था, अर्थ और सन के बीच का जो डायामीटर है, डिस्टेंस है, वो 108 किलोमीटर्स का है। अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस भी 108 टाइम्स मून का जो साइज है उसका है, इसीलिए 108 नंबर को यूनिवर्स और ह्यूमन एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया। न्यूमरोलॉजी में इसका मीनिंग है 108। अब अगर हम 0 बीच में से निकाल दे तो 1 और 8 मिलके बनता है 9। 9 नंबर का मतलब होता है कंप्लीशन, डिवाइन एनर्जी, लाइफ का साइकिल कंप्लीट होना, इसीलिए 108 चैंटिंग करने से एक कंप्लीट साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। अब योगा चक्रा साइंस के बेसिस पे क्या है, बॉडी में 108 नाड़ियां होती हैं जो हार्ट चक्रा पे मिलती हैं, 108 उपनिषद होते हैं, 108 मर्मा पॉइंट्स होते हैं। जब आप वास्तु सीखते हैं तो वास्तु में भी मर्मा पॉइंट्स होते हैं, तो वो एनर्जी पॉइंट्स बोले जाते हैं। हर क्या कहते हैं, हर नाड़ी की एक एक अपनी जो है एक एनर्जी पॉइंट एक्टिवेट होता है। माइंड और प्रोग्रामिंग मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? 108 बार जब आप मंत्र की चैंटिंग करते हो, जब आप मनके की माला को 108 बार चैंट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है, वाइब्रेशंस हाई होती है, मैनिफेस्टेशंस हाई होती है। इन शॉर्ट, यूनिवर्स अलाइन होता है, न्यूमरोलॉजिकली कंप्लीशन नंबर 9 है, एनर्जी एक्टिवेट होती है और स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन होती है। इसीलिए 108 बीट्स कंप्लीट स्पिरिचुअल सर्कुलेट करने के लिए हमें 108 बीट्स करने बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा अगर फीडबैक मिल जाए तो समझ में आएगा, येस नो जो भी अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें, और यू कैन जस्ट शो योर थम्स अप ऑन द स्क्रीन इफ पॉसिबल। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 108 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स, नंबर्स देखो, हर एक इंसान 1 से लेकर 9 नंबर के बीच की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है वो 1 से लेकर 31 तारीख के बीच में हुआ है। अब ये जो 1 से लेकर 31 तारीख का जो जन्म हुआ है, उनमें से आप किस मूलांक के अंदर आते हैं और उसके बेसिस पे आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस और क्या स्ट्रेंथ्स आ रहे हैं। मैं चैट बॉक्स में साथ साथ लिखती रहती हूँ। आप में से जो भी लोग 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं, आप लोगों का मूलांक मतलब पर्सनालिटी नंबर जो है वो 1 निकलता है। आपका मूलांक या पर्सनालिटी नंबर जो है वो 1 निकलता है। अब आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है? इंडिपेंडेंट है, एम्बिशंस है, थोड़े से डोमिनेटिंग बाय नेचर है, और नेचुरल लीडर्स है। जिस भी चीज में आप हाथ रखते हैं उस चीज को अचीव करके आते हैं। बट चैलेंजेस क्या है? थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और कभी कभार अपने आप को लोनली फील करते हैं। नंबर 1 के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ 3 A's, अटेंशन, अफेक्शन एंड एप्रिसिएशन। आई ऑलवेज सेज फॉर नंबर 1 पीपल। ठीक है, आप डेट्स देखेंगे तो नीचे इनकी लकी डेट्स भी जो है वो साथ साथ लिखी हुई है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। जो भी इंसान किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं, देयर रूलिंग प्लैनेट और देयर मूलांक इज नंबर 2। ठीक है, 2 की स्ट्रेंथ क्या है? हार्मोनियस, डिप्लोमेटिक, सेंसिटिव एंड कॉपरेटिव। बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होती है ऐसे लोगों की, और बहुत अच्छे मदर्स प्रूफ होते हैं अगर 2 नंबर की मदर्स हैं। बहुत क्रिएटिव भी होते हैं ये लोग, एंड यू जस्ट गिव देम 1 पेपर एंड दे कैन मेक 100 थिंग्स आउट ऑफ दैट पेपर। वेरी क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी गुड होस्ट ऑल्सो। अब चैलेंजेस क्या है? ओवर इमोशनल, डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन। छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, देखो 2 नंबर हमेशा जो है उसमें ना मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। रीजन, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, और चंद्रमा क्या है? स्टेबल खुद ही नहीं है। 15 दिन में घटता है और 15 दिन में बढ़ता है, मतलब 15 दिन में मर जाता है, 15 दिन में जीवित होता है। तो चंद्रमा में खुद में स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए इस नंबर को हम हमेशा इनस्टेबल नंबर मानते हैं, और ऐसे लोग अपने डिसीजंस के लिए औरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस।
नंबर 3, 3, 12, 21 या 30, आप में से किसी का भी जन्म इनमें से किसी भी तारीख पे हुआ है तो आपका रूलिंग प्लैनेट है नंबर 3। 3 क्या है? गुरु। अब ये जो गुरु जो प्लैनेट है ना, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ मैं। मंदिर के पंडित जी जैसे होते हैं, टीका लगाते हैं, चोटी बनाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, सारा दिन माला जपते हैं, एंड दे आर वेरी आर्टिस्टिक पीपल। बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, करिज्मेटिक होते हैं, मैग्नेटिक पर्सनालिटीज होती हैं इन लोगों की। अब इनको अवॉइड क्या करना चाहिए? दे आर वेरी दे आर नॉट गुड लिसनर्स। दे आर वेरी गुड स्पीकर्स बट दे आर नॉट गुड लिसनर्स। कम्युनिकेशन इनका अच्छा होता है, इमेजिनेशंस बहुत अच्छी होती है इनको, और कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन में बोलूंगी इनके लिए ये राइट वर्ड है। दे आर गुड स्टार्टर्स बट दे आर बैड फिनिशर्स। चीजों को शुरू करते हैं लेकिन खत्म नहीं करते, उसको कंप्लीट नहीं करते। नाउ नंबर 4, 4, 13, 22 एंड 31, आप लोग इनमें से किसी भी डेट को पैदा हुए हैं, आपका पर्सनालिटी नंबर 4 है, यानी कि आपका मूलांक जो है वो 4। अब 4 क्या है? इसको जो कैरेक्टर दिया गया है वो दिया गया है व्हाइट कॉलर गुंडा। ये एक्चुअली में राहुल प्लैनेट है लेकिन इसको कैरेक्टर व्हाइट कॉलर गुंडे का दिया गया है। ये एक्चुअली में एक राक्षस था जो कन्वर्ट हुआ एक प्लैनेट में। देयर इज अ होल स्टोरी, थोड़ा सा शॉर्टकट में नहीं बता पाऊंगी बिकॉज इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है। लेकिन 4 नंबर को हम बोलते हैं HOD, हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन विद पंचुअलिटी। और डिसिप्लिन्ड होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। अब इनके साथ चैलेंजेस क्या हैं? स्टबन होते हैं, ओवर कॉन्शियस होते हैं, और इमोशनली दे आर वीक पीपल। डिसिप्लिन के पक्के होते हैं, जहां पे चीज इधर से उधर हो जाए इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। नाउ नंबर 5, जो भी लोग 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं, जो भी लोग 5, 14 या 23 को किसी भी महीने की पैदा हुए हैं, उनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो है 5। 5 क्या है? इसको कैरेक्टर दिया है प्रिंस। थोड़ा ये जो कैरेक्टर है प्रिंस, ये बच्चे का कैरेक्टर है, बालक है अभी। तो ऐसे लोग होते हैं फ्रीडम लवर, एडवेंचरस होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, फ्रीडम के पीछे भागते हैं, इनको लाइफ में वैरायटीज चाहिए, एंड दे आर इंटेलिजेंट पीपल ऑल्सो। अब इनके चैलेंजेस क्या है? इम्पल्सिव, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, excess indulgence of things. Number 6, 6, 15 and 24, इनका पर्सनालिटी नंबर है 6। 6 को हम बोलते हैं फैमिली का नंबर, 6 को हम बोलते हैं लग्जरी का नंबर। पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, रिलेशनशिप, शादी, प्यार, सब इस नंबर से आता है। कंपैशनेट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। जिसके भी घर में एक 6 नंबर का इंसान है वो हमेशा फैमिली को बॉन्ड की तरह बांध के रखता है। अब चैलेंजेस क्या है? सेंटिमेंट्स, बहुत इमोशनल है, किसी की भी मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे, अपने आप को परेशान करके लोगों के लिए हेल्प करने के लिए खड़े हो जाएंगे। थोड़े से वनरेबल होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, एंड लोगों की लाइफ में थोड़ा इंटरफेरेंस ज्यादा करते हैं। स्टॉकिंग का इनको बहुत हैबिट होता है। नंबर 7, द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, 7, 16 एंड 25। आप में से अगर कोई भी इंसान इनमें से किसी तारीख पे जन्मा है तो आपका पर्सनालिटी नंबर है 7। 7 क्या है? अब बॉडी विदाउट हेड ऑफ राहु, इसके पास सर नहीं है, इसकी जो बॉडी शुरू होती है वो यहां से नीचे से शुरू होती है। अब इसके पास सर नहीं है तो इसको हम बोलते हैं भटकता हुआ इंसान। इस इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी मन की शांति नहीं, मन की तसल्ली नहीं है। बेसिकली दे डू नॉट हैव मन की शांति, मन की तसल्ली, एंड ये अपनी उस मन की शांति को ढूंढने के लिए बाहर लोगों से मिलता रहता है। और एनालिटिकल माइंडसेट का होता है, इसको हम बोलते हैं किसी भी चीज में जाता है तो उसकी डीप स्टडी में जाता है, डीप नॉलेज में चला जाता है। मे बी ऐसा इंसान PhD करे, ऐसा इंसान किसी भी तरह की कोई शेयर मार्केट टाइप्स की कोई स्क्रिप्ट लिख सकता है, कोविड की मेडिसिन हो सकता है किसी ऐसे इंसान ने बनाई हो, क्योंकि वो डीप रिसर्चेस एनालाइज में जाते हैं। इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअली नेचर के होते हैं और इंटेलेक्चुअल होते हैं। अब इनकी लाइफ में चैलेंजेस क्या है? अपने आप को आइसोलेट करके रखते हैं, थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं, अपने इमोशंस को लोगों से छुपा के रखते हैं। लेकिन इस नंबर को लाइफ में धोखे बड़े मिलते हैं। जितने भी लोगों पर विश्वास करते हैं वो लोग उनको चीट करते हैं और वो लोग उनको धोखा देते ही देते हैं। नाउ नंबर 8, अ नंबर ऑफ कर्मा, 8, 17 एंड 26। वैसे तो सभी नंबर से हमें कार्मिक से ही नंबर्स ये मिले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे के सारे नंबर्स क्या है?
8 नंबर बेसिकली हमारे को जो है ये कर्मा का नंबर है। अब इसको जो पोजीशन, जो इसको कैरेक्टर दिया गया है वो दिया गया है जज का। इनकी स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, न्यायाधीश बेसिकली हम बोल सकते हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वेल्दी, एम्बिशियस, सस्पिशियस थोड़े से भी होते हैं, और अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके भी रखते हैं ये लोग। चैलेंजेस क्या है, एडमेंट होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, और मटीरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा बात करते हैं, थोड़े स्टबन होते हैं और रिजिड नेचर के भी होते हैं। लेकिन इन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनको सक्सेस थोड़ा डीले मिलता है, इनका एक बार में कोई काम नहीं होता, इनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ते। कर्मा का नंबर है ना, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म होगा। तो जो कार्मिक अकाउंट्स खोल कर आए हो उसको क्लोज जब तक नहीं करोगे तब तक लाइफ में अचीवमेंट नहीं होने वाले। तो ऐसे लोगों को ये समझ लेना चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड। मल्टीपल अटेम्प्ट्स लाइफ में करने पड़ेंगे, लेकिन जब भी सक्सेस मिलेगी वो परमानेंट मिलेगी, टेम्परेरी कुछ नहीं मिलता। मेजरली इनको सक्सेस लाइफ के 30 35 40 साल के बाद मिलती है, बिकॉज इनका सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ इज मच बेटर देन फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ। नंबर 9, 18 एंड 27, मूलांक 9, पर्सनालिटी नंबर 9। 9 को कैरेक्टर दिया गया है सेनापति का। सेनापति मींस ही इज एन असिस्टेंट ऑफ राजा, विच इज नंबर 1 जो किंग है। अब ऐसे लोगों में ह्यूमैनिटी बड़ी देखने को मिलती है। जबान के थोड़े से खराब होते हैं, लेकिन इनको ह्यूमैनिटी देखने को बहुत मिलती है। और क्या कहते हैं, कभी कभार चीजों को कमिट कर देते हैं, और कभी कभार चीजों को कमिट करने के बाद उसको फुलफिल नहीं करते, अपनी स्टेटमेंट से बदलते रहते हैं। चैलेंजेस इनकी लाइफ में थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, अपने आप को लोनली फील करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं अगर ये अपने गुस्से को कम कम कर लें। अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। सो हेयर वी आर कंप्लीटिंग द डेट्स फ्रॉम 1 to 31, जो कि मूलांक है। मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट आपको बता रही हूँ, बिकॉज वी हैव गॉट अ लिमिटेशंस ऑफ 1 hour। तो हमने कुछ कुछ चीजें, टॉपिक्स उठाए हैं जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो सके कि ये सारी चीजें एक्चुअली में काम करती है, नंबर्स एक्चुअली में काम करते हैं। आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू ऑल, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लेन कि नंबर्स की वाइब्रेशंस कैसी है? कैन आई हैव लिटिल आंसर्स इन द चैट बॉक्स? ओके, ठीक है जी, ठीक है, ऑल राइट। सो अब कुछ नंबर्स जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। What about 23? 23 comes under 5 number, जो मैंने 5 14 23 का बताया था ना, यशवी कोहली, that comes under 5 number की कैटेगरी में। ठीक है, नाउ नंबर्स टू अवॉइड। अब नंबर्स हमें कौन से अवॉइड करने पड़ रहे हैं चाहिए? 4 नंबर जो होता है वो कहीं ना कहीं, देखो जिस भी इंसान को एडिक्शन का प्रॉब्लम होता है ना, वर्कहॉलिक, गैम्बलिंग, क्या कहते हैं, अल्कोहलिक, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो 4 नंबर से देखी जाती है। किसी भी तरह का एडिक्शन अगर किसी इंसान के ऊपर है तो दैट मीन्स उसका राहु खराब है, 4 नंबर खराब है। 7 नंबर हमारे को देता है आइसोलेशन। आप ऐसा नंबर जिसको हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत है, सब कुछ होने के बाद भी दिस पर्सन इज ऑलवेज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, तो ऐसे इंसान को हम हमेशा बोलते हैं गो इनटू स्पिरिचुअलिटी। आपको स्पिरिचुअलिटी से ही सारी चीजों के जवाब मिलेंगे, आपकी सारी चीजें आपको वहीं से मिलेंगी। नाउ नंबर 8, मिक्स्ड फॉर्च्यून। 8 नंबर, ओके, मैं आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। आई होप यू ऑल कैन सी। सपोज दिस इज नंबर 15, ठीक है। 15 का टोटल जो है 1 + 5 को टोटल करके आंसर आता है 6, ठीक है। अब मैं 15 में 9 ऐड करूंगी तो आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। अब 2 और 4 को टोटल करके भी आंसर 6 आ रहा है। अब मैं फिर इसमें 9 ऐड करती हूँ, ठीक है, आंसर आया 33। 3 और 3 को ऐड करके आंसर आया 6। सो दैट मीन्स 9 नंबर का अपना कोई वजूद नहीं है। ये जिस नंबर के साथ बैठता है ये सेम ही नंबर निकल कर आता है, तो इसीलिए इसके साथ कभी भी कोई अच्छी या कभी भी कोई बुरी चीज हो सकती है। मिस फॉर्चून का भी कहते हैं, थाली का बैंगन इधर भी और उधर भी, अपनी ही स्टेटमेंट्स को बोल के ये इंसान बदल जाता है। नाउ नंबर 8 इज नोन फॉर डिले एंड स्ट्रगल। 8 नंबर के इंसान को अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो और किसको मिलेगा? लेकिन 8 नंबर का इंसान अगर ये समझ जाए कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल मेरे कार्मिक अकाउंट की वजह से है, जो प्रीवियस लाइफ से मैं कैरी फॉरवर्ड करके इस लाइफ में लेकर आया था, उसकी वजह से मुझे ये सारी की सारी चीजें मिल रही हैं। सो अगर मैं इन सब चीजों को सही से समझ लूं, सही ट्रैक पे चलूं, गलत रास्ते पर नहीं चलूं, तो मेरी लाइफ में हर एक चीज मैं अचीव कर सकता हूँ। 8 नंबर के लोग बहुत सक्सेसफुल भी हैं। मोदी जी आर प्राइम मिनिस्टर, 17 सितंबर बॉर्न।
3 बार बैक टू बैक जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 44 की एज में जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात के। उनकी लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। बचपन में उन्होंने अपने एक, जो उनकी स्टोरी से हमें पता लगता है कि उन्होंने चाय भी बेची है। सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ द लाइफ वाज स्ट्रगलिंग बट नेवर गिव अप एटीट्यूड था, तो सेकंड ऑफ द लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। रॉजर फेडरर, 8-8 कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूं, पर्सनालिटी भी 8 है, डेस्टिनी भी 8 है, मतलब मूलांक भी 8 है और भाग्यांक भी 8 है। 8-8 बेसिकली जो होते हैं ना, 8 और 8 कॉम्बिनेशन के इंसान को स्ट्रगल बड़ा करना पड़ता है। लेकिन रॉजर फेडरर जो है वो टेनिस के प्लेयर है। 15-15, 18-18 घंटे उन्होंने भाग भाग कर जो है प्रैक्टिसेस करी है, जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल है। सो इन शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू से, शनि जो है 8 नंबर जो है वो पैरों का कारक है। पैरों से चढ़ता है और सबसे पहले पैरों को ही खराब करता है। अगर किसी का समय से पहले घुटने का दर्द शुरू हो गया तो उसका शनि खराब है। और अगर वो अपने पैरों को थका कर, 8 नंबर का इंसान फील्ड का जॉब करता है, सारा दिन चलते फिरते रहने का काम करता है, तो उसका काम बहुत सक्सेसफुल होता है। 8 नंबर का इंसान शेयर ट्रेडिंग मार्केट करे, जीरो लॉसेस। रीजन, 8 नंबर वॉन्ट्स फिजिकल एक्टिविटी। अब आप जब मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठ के कोई काम करोगे तो वो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ ब्रेन स्ट्रोमिंग आप कर रहे हो। तो वो अगर आप करोगे तो आपको लॉसेस होने ही होने हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों से भी हम अपनी लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। अब हम बात करते हैं करियर न्यूमरोलॉजी की। व्हाट इज करियर, और इन करियर से हम बेसिकली अपने आप को कैसे आगे स्ट्रांग लेकर जा सकते हैं। आइडेंटिफाई योर कोर प्रोफेशनल साइंस स्ट्रेंथ्स। बेसिकली आप अपनी चीजों को फुलफिल करके उस काम से जो है वो कर सकते हो, और अपने करियर को मिस अलाइन ना करके आपको हेल्प करता है कि आप एक परफेक्ट करियर को चूज करो जहां से आप इन सब चीजों को आगे लेकर जा सकते हो। अब जैसे कि मैंने मूलांक बताए, जो कि मैंने डेट्स बताई, आप में से जितने भी लोग 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं, अगर आप इनमें से इस प्रोफेशंस को चूज करते हैं, सो डेफिनेटली यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ वेरी इजीली। मैं पूरा डिस्क्राइब करके नहीं अभी पढ़ रही हूँ। इफ इन केस यू वांट, वी कैन हेल्प यू आउट टू गिव यू वन पीडीएफ फॉर्मेट की 1 से 9 नंबर के बीच में जितने भी लोग आते हैं उनको क्या क्या प्रोफेशंस को चूज करना चाहिए। आशीष, यू देयर? कैन यू प्लीज सेंड द लिंक? आई एम शेयरिंग यू वन लिंक। ठीक है, मैं आपको अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देती हूँ। आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, बिकॉज टू रीच आउट ईच एंड एवरी पर्सन इंडिविजुअली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देते हैं हम लोग, आप उस लिंक में ऐड हो जाइए कि पीडीएफ फॉर्मेट्स आप लोगों को वहीं से मिल जाएंगे। आई विल हेल्प यू आउट टू सेंड यू द पीडीएफ फॉर द करियर्स प्रोफेशंस के लिए। और दूसरा, अगर आपको कोई बेसिक रेमेडी करके अपनी लाइफ को इनहांस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो नंबर 1 के बेस्ट करियर्स किसके लिए? एंटरप्रेन्योर, सीईओ, डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट जॉब्स, पॉलिटिशियंस, उनके लिए बेस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, सोलर पैनल्स, आप ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं। नंबर 2 लिक्विड रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है, तो लिक्विड रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। चॉकलेट मेकिंग हो गया, कोई प्लांट हो गया वाटर का, कोई केमिकल वर्क हो गया, वॉशिंग पाउडर आपने कुछ ऐसा बना लिया, या आप डेंटिस्ट बन गए। डेंटिस्ट भी क्यों? बिकॉज डेंटिस्ट का सारा टाइम पानी का काम होता है, क्लीनिंग टीथ की करनी होती है, इसीलिए। नंबर 3 क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ नंबर है, तो ऐसा इंसान अगर एजुकेशन फील्ड में जाए तो जो आपने सीखा है, जो आपको आता है, उसके बेसिस से अगर आप अपनी स्किल्स को औरों तक लेकर जाते हो तो वो आपको हेल्प करता है। अपनी स्किल्स को औरों तक लेकर जाते हो तो इट विल बी गोना हेल्प यू आउट। सो दैट मीन्स एजुकेशन, नॉलेज, विजडम से रिलेटेड आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो तो बहुत अच्छा। ऐसा इंसान राइटर भी बन सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है। सो दीज ऑल आर रेडी टू दैट। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक दे दिया गया है, इफ इन केस यू वांट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। नाउ नंबर 4 जो नंबर है वो राहु का नंबर है, तो हर एक दिमाग से करी हुई चीज वो बेस्ट प्रोफेशन है। जैसे सीसीटीवी कैमरा, रॉ एजेंट, एआई एजेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग एंड डिटेक्टिव काम, एनी टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, इंजीनियर, जहां पे दिमाग ज्यादा लगता है, उन सब चीजों में आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड इंश्योरेंस सेक्टर ऑल्सो, आईटी इंडस्ट्री ऑल्सो। नंबर 5 इवन हैकिंग, जो पूरा का पूरा प्रोफेशन आता है, वो 4 नंबर के लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 5 फ्रीडम सीकर है, तो ऐसा इंसान एक जगह टिक कर बैठ के काम नहीं कर सकता। जर्नलिस्ट, टूरिज्म,
मार्केटिंग, ये इनके लिए बेस्ट प्रोफेशंस है. इवन सेल्स एंड मार्केटिंग भी इनके लिए बेस्ट प्रोफेशंस है बिकॉज दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन. So they can manipulate people in a very good way. देखो manipulations always not comes under a negative word. आप मेरे पास आए हो एंड आई एम अ सेल्स पर्सन और मैं आपको दो चीजों में बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाई हूँ कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद कर अपनी लाइफ की इस नीड को पूरा कर सकते हो. सो दैट्स कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑल्सो. सो ऐसा इंसान इवेंट मैनेजर बन सकता है, मार्केटिंग में अच्छा कर सकता है, बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है और डॉक्टर बन सकता है, मेडिकल फील्ड में जा सकता है. नंबर 6, 6, 15, 24 में से जो भी इंसान किसी भी दिक को पैदा हुआ है, इनके लिए बेस्ट करियर होते हैं लग्जरी रिलेटेड आइटम्स. फीमेल रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, कपड़ों का काम कर सकते हैं, अपैरल बिजनेस कर सकते हैं, परफ्यूम्स का बिजनेस कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ ज्वेलरी, हैंडबैग्स, गारमेंट्स, एनी टाइप ऑफ लिकर शॉप्स, यू कैन से पब्स, डिस्को, रेस्टोरेंट्स, एनी काइंड ऑफ मॉडलिंग वर्क. बॉलीवुड में जाने के लिए इस 6 नंबर का आपके चार्ट में होना बहुत जरूरी है. नाउ नंबर 7, 7 नंबर अगेन केतु का नंबर है विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी. तो ऐसा इंसान रिसर्चेज में बहुत जाता है, अच्छा रिसर्च कर सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, डेटा एनालिस्ट बन सकता है, फिलोसोफर्स बन सकता है. और इनके लिए अकल्ट साइंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. डीप स्टडी, बेसिकली अकल्ट साइंस जिसको हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु क्या कहते हैं और टैरो रीडिंग्स, इन सबको बोलते हैं. इट्स बेसिकली अकल्ट साइंस. तो इस इंसान की जर्नी तब तक भटकती रहेगी या ये इंसान तब तक भटकता रहेगा जब तक इस पर्टिकुलर करियर में ये नहीं आएगा. देन वी हैव नंबर 8. इनके लिए बेस्ट करियर्स होते हैं फाइनेंस रिलेटेड कोई भी चीज. 8 नंबर को हम एक्चुअली में फाइनेंस का नंबर बोलते हैं. बैंकर बन सकता है, अच्छा लॉयर बन सकता है, क्योंकि न्यायाधीश जज के राजा है तो अच्छा तो लॉयर बन सकता है, ये जज बन सकता है. और ब्लैक कलर की रिलेटेड कोई भी चीज का काम कर सकता है, लोहे का काम कर सकता है, मशीनरी का काम कर सकता है. नाउ नंबर 9 ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है. तो ऐसा इंसान एनजीओ खोल ले, सोशल वर्किंग में चला जाए, फिलंथ्रोपिस्ट बन जाए, आर्टिस्ट बन जाए, काउंसलर्स बन जाए. और 9 नंबर को ना हम अग्रेशन का नंबर भी बोलते हैं. वी कॉल इट अग्रेशन बिकॉज बॉडी में ऑलरेडी इतनी एक्सेस एनर्जी है. तो उस अग्रेशन को आप कहाँ निकालो, अच्छे कोरियोग्राफर बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, जिम आप अपना खोल सकते हो, जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हो. मंगल 9 नंबर होता है, मार्स का नंबर होता है. तो ब्लड रिलेटेड चीजें, डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हो. बेस्ट बेस्ट प्रोफेशन है ये. नाउ हमारे पास 1 से लेकर 9 तक करियर्स अभी हमने कवर किए. करियर डिसीजन गाइडेंस 1 और 8 नंबर जो होते हैं, देखो बहुत बार ऐसा होता है कौन इंसान बिजनेस कर सकता है, कौन इंसान जॉब कर सकता है. ये भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके चार्ट को देखकर पता लग जाती है. नंबर 1 एंड नंबर 8 का जो इंसान होता है ना, वो हमेशा अथॉरिटी पे रहता है. तो जिसके पास अथॉरिटी है दैट पर्सन इज अ गुड बिजनेसमैन. दैट पर्सन कैन बिकम अ गुड बिजनेस पर्सन. एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं आप. नंबर 3 एंड नंबर 5 आर्ट्स का, कम्युनिकेशन का, डायनेमिक फील्ड्स. अब ये दोनों जगह न्यूट्रलाइज है. ऐसा इंसान बिजनेस भी कर सकता है, ऐसा इंसान जॉब भी कर सकता है. 2 एंड 6, 9 स्पेसिफिकली मैं 2 नंबर को बोलूंगी. 2 नंबर के इंसान को कभी भी बिजनेस में नहीं जाना चाहिए because they are not able to take decisions. They are always depend on other person for their decisions. इनको हमेशा जॉब, एक सिक्योर जॉब पकड़े और अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे कोई जॉब पकड़े विच इज बेट. 6 नंबर बिजनेस जॉब बोथ, बट मेरे हिसाब से 6 नंबर को बेटर इज जॉब बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है लोगों से. एंड बिजनेस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड द अथॉरिटी. when you do not have authority to take, because 6 नंबर को ना ब्रेन वॉश करना इट्स वेरी इजी. नंबर 9 ऑलवेज बिजनेस बिकॉज इतना अग्रेशन है, किसी के अंडर काम नहीं कर सकता तो उसको अपना काम ही करना चाहिए. 4 एंड 7, 4 नंबर अगेन गो फॉर योर ओन पर्टिकुलर बिजनेस. और 7 नंबर जॉब. 7 नंबर को हम बिजनेस नहीं बोल सकते, 7 नंबर को हम जॉब ही बोलेंगे बिकॉज इसके पास भी डिसीजन लेने की पावर्स नहीं है. तो ऑलवेज गो फॉर जॉब्स. अगर आपको बिजनेस करना है तो सिर्फ और सिर्फ अकल्ट साइंस का करना है. सपोज यू लर्नड न्यूमरोलॉजी और यू लर्नड astrology and you start giving consultations, that's your business. Or you might have opened some पूजा सामग्री का आपने दुकान खोल लिया जहां पर लोग आपके पास पूजा का सामान लेने आ रहे हैं. this can be work because again it is a work of occult science. तो आप ऐसा सा कुछ काम कर सकते हैं. ठीक है. साइंस दैट यू आर इनटू राइट करियर.
वर्क फील्स नेचुरल एंड एनर्जाइजिंग। जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर आपको उस काम को करके तसल्ली, सेटिस्फैक्शन मिलता है और आपकी एनर्जीज अलाइन है, आपको खुशी, संतुष्टि मिलती है, यू आर इन द राइट प्रोफेशन। यू आर यूजिंग यू बेसिकली टेकिंग इनिशिएटिव। आप अपने टैलेंट को उस काम में यूज कर पा रहे हैं, आपको ग्रोथ मिल रही है, आप हैप्पी हो। एक्सेसिव स्ट्रगल करने के बाद भी अगर आपका काम सही नहीं चल रहा है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट इन द राइट प्रोफेशन। यू फील फुलफिल्ड एंड यू फील प्रॉस्पेरस। जब हम कोई किसी पर्टिकुलर, देखो हम कमाते क्यों हैं? हमारी जिंदगी की दौड़ जो है ना, वो लगी हुई है किस चीज को लेकर? अच्छा स्कूल, अच्छी पढ़ाई, अच्छा करियर, अच्छा पैसा, अच्छी लाइफ, यही है सब कुछ। करेक्ट? तो वो बचपन से जो हमको एक जर्नी सिखाई गई ना, अच्छी करियर को चूज करने की, अच्छा करियर करोगे तो शादी अच्छे लड़के लड़की से होगी, अच्छा पैसा कमाओगे तो बच्चे को आगे अच्छी लाइफ दे पाओगे, अपनी फैमिली का टेक केयर कर पाओगे। तो जब तक एक प्रोफेशन को सही नहीं चूज करोगे तो आगे लाइफ कैसे अच्छी होगी? एंड एवरीवन वांट्स मनी। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर बच्चे को अपना एक अलग रूम चाहिए, हर बच्चे को अपना एक अलग लैपटॉप चाहिए, हर बच्चे को अपनी एक अलग गाड़ी चाहिए। हम पहले के टाइम पे के जो लोग थे, एक गाड़ी में पांच पांच लोग एक एक के ऊपर बैठ बैठ के भी चले जाते थे, एक स्कूटर पे भी तीन तीन लोग ट्रैवल कर लेते थे। लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो और इस कंपटीशन में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर राइट प्रोफेशन को नहीं चूज करोगे तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? साइंस दैट यू आर नॉट इन द राइट करियर। कांस्टेंट बर्डन आपको लगेगा, आप एग्जॉस्ट रहोगे, स्टक फील करोगे। जितना मर्जी आप हार्ड वर्क कर लो, बट स्टिल यू आर स्टक इन द सिचुएशंस। सेटिस्फैक्शन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, आप इतना काम करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं है। ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारी नेम न्यूमरोलॉजी की। नेम न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है, हम उसकी बात करते हैं। व्हाट इज नेम न्यूमरोलॉजी? हमारे नेम के अंदर एक्चुअली में कुछ नंबर्स, हिडन नंबर्स होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, और हमारा नेम हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल स्क्रीन पर दूंगी। ठीक है? मैंने एक नेम लिया ऋतु। ठीक है? अब जो हम मेथड यूज करते हैं, 99.9% न्यूमरोलॉजिस्ट नेम स्पेलिंग करेक्शन के लिए शैल्डियन या कायरो मेथड को यूज करते हैं। ठीक है? अभी जो शैल्डियन या कायरो मेथड है, इसमें ए से लेकर जी तक 26 लेटर्स है, और इन 26 लेटर्स का हर एक न्यूमेरिक वैल्यू निकलती है। तो अब मैं उस न्यूमेरिक वैल्यू के बेसिस पे ऋतु का नेम को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। ये है ऋतु। अब ये ऋतु के नेम को मैं टोटल करती हूँ तो टोटल आता है 13, 1 + 3 करती हूँ तो आंसर आता है 4। न्यूमरोलॉजी में जिनका भी नाम 4 या 8 पर आता है, या वैसे भी जिनका भी नाम 4 या 8 पे आता है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है। उनको कभी भी कोई चीज इजीली नहीं मिलती है, स्मूथली नहीं मिलती है। रैंडम एग्जाम्पल दिया मैंने ये। सपोज अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक आई डाल दिया, क्योंकि मुझे समझ में आया आई की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ पे एक 1 ऐड किया। अब मैं 13 की जगह यहाँ पर ले आई 14, और 1 + 4 को टोटल करके आता है आंसर 5। बस यही तो करना है न्यूमरोलॉजी में, और क्या है? एब्सोल्युटली नो। लोग मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, मैम आजकल तो ना लोगों के फेसबुक पे मैं नाम देखता हूँ तो आजकल एक एक्स्ट्रा ए डालने का ट्रेंड चल चुका है। एक्सक्यूज मी, ये ट्रेंड नहीं है। दैट इज द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम। अब ये जो नेम स्पेलिंग करेक्शन है, इसको 5 नंबर पे लाना, क्या ये सॉल्यूशन है? यस, ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है। अगर सपोज इस ऋतु का चार्ट अगर मैंने बनाया, और इनके चार्ट के अंदर ऑलरेडी इनके डेट ऑफ बर्थ से कहीं से भी किसी भी कैलकुलेशन से अगर ऑलरेडी चार्ट में 2 बार 5 आ रहा है, मैंने गलती से नाम 5 पे और दे दिया, इंसान और ज्यादा लेजी हो जाएगा। 5 नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स क्या है? लेजी, लेबैक एटीट्यूड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा। ठीक है? तो इंसान जरूरत से ज्यादा लेजी हो जाएगा, लेबैक एटीट्यूड आ जाएगा, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगा, चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, रिस्क नहीं ले पाएगा अपनी लाइफ में। प्लस 5 नंबर का एक बेसिक ट्रेड क्या है? फ्लर्टनेस। अगर इसके चार्ट में 2 बार 5 आ रहा है और मैंने गलती से एक 5 नंबर पे इनका नाम दे दिया, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज आर देयर।
प्लस ऐसा इंसान अपने आप को हाइजीनिकली क्लीन नहीं रखेगा, अनहाइजीनिक रखेगा अपने आप को सारा टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक नेम स्पेलिंग करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरनेट से देखकर नहीं, खुद या तो सीख लो या किसी एक्सपर्ट के पास जाके करो, विच इज बेटर। अपने आप से रोज इंटरनेट से देखकर रोज कुछ चीज नहीं समझ आके अपने नाम में कोई एडिशनल लेटर लगा देना, इट इज नॉट राइट। जब एक नाम हमारा न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट होता है और वो करेक्ट होने के बाद हमारी लाइफ को रॉकेट की तरह ऊपर लेकर जा सकता है, हमारे को सक्सेस, ग्रोथ दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, लाइफ को इनहांस कर सकता है, तो क्या एक गलत लेटर हमारी लाइफ में जहां पर हमें वहां से नीचे नहीं ला सकता? एब्सोल्युटली ला सकता है। तो नेम स्पेलिंग करेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सबके लिए। सबके लिए मैं बोलती हूँ नेम स्पेलिंग करेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब नेम न्यूमरोलॉजी है क्या? नेम जो है वो एनर्जी को क्रिएट करता है। हर एक लेटर का एक न्यूमेरिक वाइब्रेशंस है जो हमारे नेम के अंदर छुपा हुआ है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं जब हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं? आपकी ट्रू पर्सनालिटी को निकाल कर लेकर आता है, आपको गाइड करता है करियर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अट्रैक्ट करता है वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी को, और इंप्रूव करता है रिलेशनशिप और कंपैटिबिलिटी को। देखो, it's been 7 to 8 years I am doing consultations and I'm teaching students from last 3 years. इतनी लोगों से डील करके ना अब ये चीज समझ में आ गई है ना, प्रॉब्लम ना सिर्फ 5 ही है सबकी लाइफ में: पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ, ज्यादा कंसीविंग का प्रॉब्लम, या कोर्ट केसेस, या करियर चूज कौन सा करना है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं किसी की लाइफ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर ये प्रॉब्लम्स को हमें समझ में आ जाना, इस पर्टिकुलर नंबर की ये हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इस पर्टिकुलर नंबर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, इस पर्टिकुलर नंबर को धोखे मिल सकते हैं, या ये नंबर जो है वो ग्रो करने के लिए टाइम मांगता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम ही कहाँ फेस करनी पड़ेगी? हिडन नंबर्स, सेलिब्रिटीज के भी नेम में हिडन नंबर्स हैं। चलो थोड़ा थोड़ा सा अब नाम की बात करते हैं, ठीक है? अनिल अंबानी, अनिल के नेम में आता है नील, एंड दिस इज रियलिटी। जिनके भी नेम में सुनील, अनिल, जिनके भी नाम में नील आता है, उनको ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम होती है। धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे हैं, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। व्हाई ही इज नॉट ग्रोइंग? इनके ऊपर तो कितने करोड़ों रुपए का डेट है। मुकेश अंबानी नाम में कैश आता है, ये रीजंस हैं, एक्चुअली में रीजंस हैं ये। रोहित शर्मा नाम में हिट आता है, हिट, आपके सामने रिजल्ट्स है। विराट कोहली, रैट, रैट बेसिकली अग्रेशन को दिखाता है, एक जगह टिकता नहीं है ना, भागता रहता भागता रहता भागता रहता है। और विराट कोहली का यही है, क्विक रिफ्लेक्सेस होते हैं इनके, बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखता है, बहुत एब्यूजिव भी है, मैचेस में दिखता है हमें बहुत ज्यादा। अक्षय, ए जो होता है इज नोन एज अ किंग, ए के इज नोन एज अ किंग। और जब तक इनका नाम राजीव भाटिया था इनको कोई नहीं जानता था, जब इनका नाम अक्षय हुआ इनको सब जानने लग गए। अ किंग ऑफ एक्शन विद फिटनेस, खिलाड़ी कुमार। शाहरुख खान, शाह मतलब किंग, रुख मतलब फेस, किंग ऑफ बॉलीवुड, एवरीवन नोज हिम, फेस ऑफ इंडियन सिनेमा। एक्चुअली में लोग शायद सलमान खान और आमिर खान को पूरी दुनिया में कम जानते होंगे, लेकिन शाहरुख खान को मेजरली पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। दिस इज रियलिटी। नाउ, celebrities who changed their name spellings and after that they became popular. तृप्ति दिमरी, एक आई ऐड कराने से कला सीरीज इनको मिली, वेब सीरीज मिली, उसके बाद एनिमल मूवी में आई। इवन इनकी शायद लैला मजनू मूवी जो थी वो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो मूवी दोबारा रिलीज हुई और फिर अपने नेम स्पेलिंग के बाद ये जो है वो फेमस हो गई। रानी मुखर्जी, वी ऑल नो। आयुष्मान खुराना, एक एक्स्ट्रा एन और एक्स्ट्रा आर उनके सरनेम में लगा, और इनके तो खुद के फादर एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट रह चुके हैं, नाउ ही इज नो मोर, लेकिन खुद ही इनके फादर ने इनकी करेक्शंस करी हैं। राजकुमार राव, एम एक एक्स्ट्रा ऐड करने से लाइफ इनहांस हो गई। अजय देवगन ने अपने देवगन में से एक एन ड्रॉप किया और उसके बाद से बहुत फेमस हुए हैं, उसके बाद से उन्होंने अपने मल्टीप्लेक्सेस भी खोले हैं। सुनील शेट्टी के नाम में एक एक्स्ट्रा आई ऐड होने से, एक्स्ट्रा ई ऐड होने से ही इज फेमस एंड ही इज ग्रोइंग डे बाय डे। करिश्मा कपूर का नाम एक्चुअली में करिश्मा कपूर था। उनकी मदर ने बहुत सारे इंटरव्यूज में आके बोला है कि उनका हमने नाम करिश्मा रखा था, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली नाम जब करेक्ट किया गया तो उनमें करिश्मा कपूर हो गया। नुसरत बलूचा नेम स्पेलिंग करेक्शन करने के बाद ही फेमस हुई है। इवन तमन्ना भाटिया पहले साउथ की मूवीज में आती थी, बिल्कुल भी नहीं जानी जाती थी। जब वी मेट जो मूवी बनी है वो एक्चुअली में तमन्ना भाटिया की एक साउथ की मूवी का रीमेक है।
तो तमन्ना भाटिया वहां से फेमस नहीं, तमन्ना भाटिया नेम स्पेलिंग करेक्शन के बाद फेमस हुई है। व्हाई नेम करेक्शन वर्क्स, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताती हूँ, थोड़ा सा साइंटिफिक बताती हूँ। देखो, नेम स्पेलिंग करेक्शन हर एक इंसान कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? नेम स्पेलिंग करेक्शन की वाइब्रेशंस जो होती है ना, वो हमारी प्लानिटरी पोजीशंस के बेसिस पे काम करती हैं। और क्यों हर एक इंसान को इसको कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम स्पेलिंग करेक्शन, हमारी जो न्यूमरोलॉजी है ना, ये महाभारत और रामायण के टाइम से एग्जिस्ट करती है। न्यूमरोलॉजी का थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। न्यूमरोलॉजी इंडिया में नहीं बनी, ना ही इंडिया में इसको डेवलप किया गया है। पाइथागोरस ने 569 बीसी में न्यूमरोलॉजी को इन्वेंट किया था। अनफॉर्चुनेटली ग्रीस में रहते थे वो। पाइथागोरस के बारे में जनरली लोग जानते नहीं है, लेकिन इसको अडेप्ट किया गया। ये एक वेस्टर्न साइंस है जिसको हम लोगों ने अडेप्ट किया गया। हिंदी में इसको नाम हम अंक शास्त्र बोलते हैं, लेकिन इसको हमने अडेप्ट किया। ठीक है, अब ये जो इतनी पुरानी है, बॉलीवुड की पुराने से पुरानी मूवी उठा लो, कभी कभी मूवी का नाम न्यूमरोलॉजिकली करेक्टेड है। हम आपके हैं मूवी का नाम न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट है। मल्टीपल मूवीज है, मल्टीपल मूवीज। जो बॉलीवुड स्टार्ट हुआ था तब से न्यूमरोलॉजी जो है वो जानी जाती थी। देखो, नंबर्स की जो गेम है ना, और ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये बहुत समय से है, लेकिन लोगों को शायद कोविड टाइम के बाद से पता लगना, ज्यादा पता लगा। People are aware after COVID because social media was growing day by day. Instagram started their reels day by day. तो reels Instagram की आने से लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस हुई है। तो न्यूमरोलॉजी अभी से नहीं, एशियन टाइम से चल रहा है। महाभारत, ओके। 1 and 8 मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। 1 and 8, जो 1 और 8 नंबर है ना, ये दोनों के दोनों नंबर आपस में एंटी नंबर है। 1 नंबर सूर्य है और 8 नंबर जो है वो क्या है? शनि है। सूर्य और शनि आपस में एंटी नंबर्स हैं। सन जो है वो फादर है, सूर्य जो है वो फादर है, और 8 जो है वो बेटा है। नीरम जी, आई विल टेक योर क्वेश्चन इन अ Q&A। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। सो अब 1 और 8 आपस में जो है वो एंटी नंबर्स है। जनरली सूर्य, शनि को जो है वो सूर्य का इलेजिटिमेट चाइल्ड बोला जाता है। तो अब ये दो नंबर अगर साथ में आ गए, 1 and 8, जिसको बोला जाता है डेडली डेंजरस कॉम्बिनेशन, तो 18 नंबर का इंसान जब पैदा हुआ तो इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। उसको स्ट्रगल हर मोड़ पर मिलता है। नेम स्पेलिंग करेक्शन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूमरोलॉजी महाभारत के टाइम पे भी एग्जिस्ट करती थी। महाभारत 18 अध्याय है महाभारत में। डेडली डेंजरस कॉम्बिनेशन, 18 दिन चला, 18 लाख 1000 सैनिक इन्वॉल्व थे, तो 18 की पावर को मिलके बनता है 9, और 9 नंबर है डिस्ट्रक्शन का नंबर, मंगल का नंबर। इसीलिए तो हर जगह पे नंबर्स की वाइब्रेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। नंबर्स, अब नंबर्स की वाइब्रेशंस काम कैसे करती है और हमारे को कैसे रिजल्ट देती हैं? देखो, मेरे पास लोग आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि मैम मैंने नेम स्पेलिंग करेक्शन तो कर ली, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं कराऊंगा, बहुत हैसल है, आई कैन नॉट गो फॉर दैट। मैं बोलती हूँ नहीं कराना जी। वो कहते हैं फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? बताते हैं जी रिजल्ट कैसे मिलेगा। जब हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं और लोग जब उसको अपने डॉक्यूमेंट में चेंज कराते हैं, पहला तो डॉक्यूमेंट में चेंज कराने का प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग। 8 महीने 10 महीने लग जाते हैं। गैजेट का एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको जाके उसको चेंज कराना पड़ता है। उससे पहले आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल देना पड़ता है। हम वो सब चीजों में नहीं जाएंगे। हमने क्या किया, हमने नेम स्पेलिंग करेक्शन कराई। जिनको अवेयरनेस नहीं थी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में 8 से 10 महीने धक्के खा के उन्होंने करा लिया। अब डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा पासपोर्ट, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी के सभी मेरे वॉलेट में या मेरी अलमीरा में, कबर्ड में कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। जरूरत पड़ने पर मैं इसको निकालती हूँ। वीजा, पासपोर्ट लगने जाना है तो वीजा लगने जाना है तो पासपोर्ट निकल जाएगा। ट्रैवल करना तो पासपोर्ट निकाला जाएगा, वरना कौन रोज पासपोर्ट को लेके घर से बाहर निकलता है? करेक्ट है। तो ये जो चीजें हैं ये दबी पड़ी हैं हमारे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में, या कहीं ना कहीं हमारी अलमीरा में या कबर्ड में। लेकिन अब हमको इसका रिजल्ट कैसे मिलता है? पीपल दोज हु आर एक्टिवली ऑन द थ्रू टेक्नोलॉजी, स्काइप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जितने भी लोग इन सब चीजों को यूज करते हैं उनको न्यूमरोलॉजी रिजल्ट्स बहुत जल्दी देती है। रीजन, जब हम नेम स्पेलिंग, जैसे आप लोगों को मेरा और मेरे को आप लोगों का नाम दिख रहा है, ठीक है, आर नेम इज ट्रैवलिंग थ्रू द प्लानिटरी पोजिशंस। हमें एक जगह बैठ के हर एक इंसान का नाम दिख रहा है, हमें एक जगह बैठ के हर एक इंसान की आइडेंटिटी दिख रही है। तो अब वो नाम कहाँ से ट्रैवल हो रहा है? इंटरनेट, ठीक है।
टेक्नोलॉजी जूम, जूम से हम कनेक्टेड है। राहु को बोला जाता है टेक्नोलॉजी का प्लैनेट, हम जूम से कनेक्टेड है। जूम जो है वो किसके अंडर आ रहा है? अगर जूम ही चलो सिर्फ लेंगे तो नहीं चलेगा ना, इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? सैटेलाइट से, वाईफाई, सैटेलाइट। सैटेलाइट से इंटरनेट आ रहा है, वो सैटेलाइट कहाँ है? आकाशमंडल के बीच में, ठीक है। उन ऑर्बिट्स के बीच में, उन्हीं ऑर्बिट्स के बीच में जब हमारा नेम घूम कर वहां से आता है तो हमारे को जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। सो पीपल दोज हु आर एक्टिवली ऑन द सोशल मीडिया और ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, डेफिनेटली दे गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। तो हमें अपने नेम स्पेलिंग को करेक्ट कराने के बाद उसको वाइब्रेशंस को एक्टिवेट भी करना पड़ता है। दैट आई like teach in my classes, where I like tell my students and where I go for the proper courses, वहां पे हम पूरा आपको सिखाते हैं इन सब चीजों के बारे में। एक अच्छा नेम स्पेलिंग हमारे को क्या देता है? बहुत सारी चीजें देता है हमारी लाइफ में, बहुत सारी चीजों को जो है वो इनहांस करता है और बहुत सारी चीजों को हमारे को मदद करता है इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। सो अभी बेसिकली हमारी जो क्लास का कंटेंट था, आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड दैट। मेरी लाइफ के थोड़े से इंसिडेंट्स मैं बताना चाहूंगी, मुश्किल से 2 मिनट लूंगी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2015 में, जब मैंने न्यूमरोलॉजी को अडेप्ट किया था। करियर मैंने स्टार्ट किया अपना थ्रू टीचिंग। मैंने टीचिंग से अपना करियर स्टार्ट किया। 40 साल दिल्ली में रही हूँ, पली बड़ी वहीं की हूँ। और पिछले 3 साल से मैं सोनीपत हरियाणा में रहती हूँ। तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो मैंने अपना करियर शुरू किया था स्कूल टीचर से, नर्सरी स्कूल टीचर से। डीपीएस और मदर्स प्राइड जैसे स्कूल्स में मैं जॉब कर चुकी हूँ। 8 से 10 साल की जॉब के बाद मुझे लगा इट इज नॉट अ कप ऑफ माई टी, लेट मी जस्ट स्विच माई करियर इनटू कॉर्पोरेट और एमएनसी। जब वहां पे गई तो वहां पर मेरी जॉब स्टेबल नहीं थी, हर 3 महीने में निकाल देते थे, और या सैलरी नहीं देते थे, या कंपनी बंद हो जाती थी। तो मुझे लगता था शायद प्रॉब्लम इज विद इन मी, लेट मी जस्ट स्विच दिस थिंग। नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया, 2 साल बिल्कुल घर बैठी कुछ नहीं किया। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई ओन कॉल सेंटर। यूएस और कनाडा का मैंने कॉल सेंटर स्टार्ट किया 2011 में। जब 2011 में मैंने इसको स्टार्ट किया विद माय 2 स्कूल फ्रेंड्स टिल 2015, इट वाज गोइंग अमेजिंगली। आई वाज अर्निंग इन डॉलर्स एंड आई वाज वेरी 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 सेटिस्फाइड। 2015 वन ऑफ माय पार्टनर, जो कि मेरा स्कूल फ्रेंड था, ही चीटेड ऑन अस इन टर्म्स ऑफ मनी, और मेरे ऊपर 35 लाख रुपीज का डेट था उस टाइम पे। बहुत बड़ा अमाउंट था 2015 में, आज भी है। क्योंकि मार्केट में सभी लोग मुझे जानते थे, मार्केट का फेस वैल्यू मैं थी, तो वो पैसा मुझे ही रिटर्न करना था, एंड आई वाज इन वेरी मच ट्रबल। देन आई मेट वन ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट, जिन्होंने मेरे नेम स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा ओ ऐड किया। माय नेम स्पेलिंग एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, माय नेम स्पेलिंग इज सोपर्णा। जनरली लोग प्रोनाउंसिएशन में सोपर्णा कर देते हैं। ये मैंने करेक्ट नहीं किया, ये मैंने एक न्यूमरोलॉजिस्ट से करेक्ट कराया था, जिनसे मैंने 25,000 रुपए 15 मिनट की कंसल्टेशन के 2015 में दिए थे। बट आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। एक नेम स्पेलिंग करेक्ट करी, उन्होंने जो मुझे रेमेडीज दी वो सारी रेमेडीज मैं परफॉर्म करती रही। 20-25 दिनों में, 25 से 30 दिनों में मेरी लाइफ ना बिल्कुल 360 डिग्री बदल गई। मतलब मेरी लाइफ में पैसा वो आ गया जो मेरे को अपना वो डेट उतारना था। देन आई स्टार्टेड बिलीविंग ये न्यूमरोलॉजी काम करती है, और इतनी मिराकुलसली काम करती है मुझे नहीं पता था। बैक ऑफ द माइंड, मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी, जब न्यूमरोलॉजी इतनी हेल्प कर सकती है तो उसको सीखा जाए। बट आई वॉज बिजी इन माई बिजनेस। जैसे ही न्यूमरोलॉजिकली नेम करेक्ट किया, उसी साल में मैंने अपने 2 बिजनेस और स्टार्ट कर लिए, डिजिटल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। मैं डिजिटल मार्केटिंग 2015 से करती आ रही हूँ, जो लोगों को तब नहीं पता था। एफिलिएट मार्केटिंग आज भी बहुत लोगों को नहीं पता है। सो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली। 2019 आई डिसाइडेड आई हैव टू लर्न दिस। 2019 में मैंने न्यूमरोलॉजी को सीखा। आज न्यूमरोलॉजी सीखनी बहुत आसान है। किसी के भी वेबिनार को रजिस्टर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके क्लास में बैठ जाओ। उस टाइम न्यूमरोलॉजी सीखने के 1.5-2 लाख रुपए लगते थे, बिफोर कोविड। क्योंकि तब तक क्या कहते हैं, ये रेवोल्यूशन नहीं आया था। एक चीज आपको और बताती हूँ, इट माइट हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। 2020 टोटल करके आता है 2 + 2 4। 4 नंबर होता है राहु का। राहु क्या है? रेवोल्यूशन लेकर आता है। और 2020 कोविड में क्या रेवोल्यूशन आया? सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। ये राहुल लेकर आता है रेवोल्यूशन एक्चुअली में। तो हमें ये चीज समझ में आई। आज न्यूमरोलॉजी सीखना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी फॉर एवरीवन। हर एक इंसान सीख सकता है। मेरे पास 12 साल के बच्चे भी सीखते हैं, मेरे पास 80 साल के लोग भी सीखते हैं, एंड अमेजिंग रिजल्ट। जिसने फॉलो किया अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना लेता है।
सो मेरी लाइफ बहुत बेहतर हुई है न्यूमरोलॉजी को सीख के। जिस जिस चीजों के सपने देखती थी वो सारी की सारी चीजें जो है वो कंप्लीट हुई हैं, सारी की सारी चीजों में अचीव करी है लाइफ में। डे बाय डे, स्लोली एंड स्लोली, आई एम ग्रेजुअली improving my life, increasing day by day, and helping other people to fulfill their dreams through this particular subject, and to help other people उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, उनकी लाइफ की ऑब्स्ट्रैकल्स को, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। 90% consultations we are getting of financial problems, and I am proudly saying that I am helping people to come out from those situations, especially finance, relationship, and the health problems. So यहीं पर ही हमारा मेरा वेबिनार खत्म होता है। And thank you so much, all of you, to give me an opportunity to be a part of this community. Yes, ma'am, the webinar is finished. Pooja ji, you there? Yes, ma'am, I'm here. Would you like to have a Q&A round? Yeah, absolutely, absolutely. Whosoever is having any questions, नीचे react box में जाके एक hand raise का option होगा. Please just raise your hand and I will take your question. Or you can just drop it in the chat box also. Ma'am, according to the driver number, can you tell which number would be good? Ma'am, which number would be good for what? Numbers are in different ways. For your career, for your name spelling, or for what exactly things that you're asking, Neelam ji? Name spelling. Okay. Ma'am, so sorry to disappoint you, but name spelling correction, it is not easy that we can do it randomly. ठीक है, हम नेम स्पेलिंग करेक्शन को जब हम करते हैं ना, तो हम 22 फिल्टर्स को यूज करते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पर्सनालिटी क्या है, आपका डेस्टिनी क्या है, आपके लोशो ग्रिड बनता है जिसको हम ग्रिड बोलते हैं, उसमें कितने नंबर्स आते हैं, कितने नंबर प्रेजेंट है, कितने मिसिंग है, कितने रेपिटेटिव है, आप कौन से प्रोफेशन में। सो मल्टीपल एस्पेक्ट्स कम। सो आफ्टर दैट विल बी गोना डिसाइड कि नेम को किस पे लाना चाहिए। ठीक है मैम, ऑल राइट। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबडी साइड? आप लोगों को हमने अपना एक लिंक दिया है व्हाट्सएप का। इफ इन केस यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट अ ग्रुप, यू कैन जस्ट ऐड इट ओवर देयर, यू विल बी गोना गेट द इन्फॉर्मेशन। मैम, डॉक्यूमेंटेशन में चेंज नहीं किया तो चलेगा? यस, बट नेम स्पेलिंग को करेक्ट कराने के बाद उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। उसकी वाइब्रेशंस को एक्टिवेट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक्टिवेशन का प्रॉपर प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ 90 days, वो करना बहुत जरूरी है। We are available on Instagram. We are available on YouTube also. If in case you want to subscribe, you can do that also. काव्या जी, वीजा के लिए मैं 2 रेमेडीज देती हूँ। आई विल टेल यू दोज 2 रेमेडीज, इफ इन कैन जस्ट ट्राई विद दोज 2 रेमेडीज। वीजा, अगर आप स्टूडेंट वीजा देख रहे हैं या किसी भी चीज का वीजा आप देख रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू, सबसे पहले किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में जाके आपको मेडिसिन डोनेट करनी एवरी मंथ टिल द टाइम यू आर नॉट गेटिंग योर वीजा। ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाके आपको जो है वो मेडिसिन डोनेट करनी है। किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाओ और वहां पर जाकर पूछो कि मेडिसिन की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। अमाउंट योर चॉइस, वट एवर योर पॉकेट अलाउज। सेकेंड रेमेडी, ट्यूसडे वाले दिन आपको 2 पैरेट्स लेकर आने हैं, केज के साथ, पिंजरे के साथ 2 पैरेट्स लेकर आने हैं। ट्यूसडे वाले दिन घर पर रखो, उनको खिलाओ पिलाओ और वेडनेसडे को उड़ा दो। जैसे ही वो उड़ेंगे, आपकी भी वो जो एक बंधी हुई चीजें हैं ना, वो खुलनी शुरू हो जाएंगी फॉर द वीजा पर्पस। All right. So, any other question? Ashish, can you please help me to send the links in the group for the Insta and Facebook? Yes, ma'am. All right. Ma'am, these are the easiest remedy. I'm so sorry. These are the easiest remedy. What about starting a business? खुशी जी, मैं क्वेश्चन को पूरा अच्छे से जानना चाहूंगी। आप क्या जानना चाहते हो इसके बारे में? How to ensure it goes smooth? Ma'am, for that, I need to see the date of birth. I need to see the chart of that person, whether that person is in the right profession or not. अगर वो right profession में है भी, तो majorly उनकी life में problem क्या है, किसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं हो पा रही। देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। जब तक देखो रूट कॉज नहीं पकड़ेंगे, पेट में दर्द है, हम सर दर्द की दवाई देते रहेंगे तो कोई कुछ काम नहीं होने वाला। सो पहले हमें वो डायग्नोस करना है, रूट कॉज पकड़ना है, प्रॉब्लम क्या है, तो उसके लिए इंसान का चार्ट देखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है मैम, थैंक यू जी। So I'm here. If in case that you can ask any question, you can.
So I think the session is now about to end. Before we end the session, ma'am, I would like to give you formal vote of thanks on behalf of our college for such a wonderful session. My pleasure. A very good evening to all everyone present here. On behalf of Malini Kishore Sangvi College of Commerce and Economics, I take this opportunity to express our heartfelt gratitude to our esteemed speaker Suparna Arora for delivering such an insightful and enriching session on numbers across disciplines, from mathematics to mysticism. Ma'am, your deep knowledge, clear explanation, thought-provoking example truly helped us understanding the fascinating connection between the scientific and mystical dimensions of number. Your guidance on self-discovery, number threads, and career mapping has given our participants valuable perspectives that will stay with us for a long time. Thank you for making the session so engaging and meaningful. We also extend our sincere appreciation to our management, principal, faculty members, and organizing committee for their continuous support. A special thanks to all participants for joining us and contributing to the success of this webinar. Once again, thank you, Ms. Suparna Arora, for your time, expertise, and inspirations you shared with us today. Thank you, everyone, and thank you so much, ma'am. And we would like to connect you again. Thank you. And I request all the participants, if you really find this session interesting and helpful for you, ma'am has given you WhatsApp link in the chat board. You can join with that. All right. So thank you so much. Thank you so much once again.